गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुनः मैं अभी से आप लोगों से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ और कल के तारीख में हम लोगों ने मिक्सचर को डिफाइन किया था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट किया था। आज पुनः मिक्सचर के टाइप की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। मिक्सचर का लिटरल हिंदी मीनिंग जो होता है मिक्सचर। तो जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर को जब शुरू ही किया था तो उस समय ये चर्चा हुई थी कि अराउंड एस whatsoever the metals are available, they have been classified into two types, pure and impure. And we had discussed that the number of pure matters is limited, but impure matters are unlimited in number. So whatsoever we see various kinds of matters, they all are mostly impure. Pure matters are comprised of elements and compounds. Their numbers is limited, but impure matters, so called mixture, their number is unlimited, uncountable. So, on the composition of constituents, on the basis of composition of mixture, we may classify mixture in two types, homogeneous and heterogeneous. मतलब कंपोजिशन के आधार पर हम मिक्सचर को दो भागों में बांटते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजेनस को हिंदी में क्या कहते हैं? समांग, और हेट्रोजेनस का मतलब असमांग, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म भी हम कह सकते हैं इसको, समान और असमान। तो मिक्सचर में भी क्लासिफाइड into two types, homogeneous and heterogeneous. What is the homogeneous mixture? So a mixture is said to be homogeneous if the constituents are present uniformly and there is no clear boundary of separation between the constituents. Constituents means elements and compounds. जैसा कि मिक्सचर को डिफाइन हम लोगों ने किया था कि when two or more substances may be elements or compounds mixed together physically in any ratio by the mass, in any ratio by the weight, we obtain mixture. मतलब यह हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में फिजिकली मिक्स करते हैं, फिजिकली मतलब भौतिक रूप से मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है, मिश्रण का निर्माण होता है। When two or more substances are mixed together physically in any ratio by the mass, we obtain mixture. तो यहाँ पर substances का, constituents का मतलब क्या होता है? substance. Substance में भी elements और compounds. तो यहाँ पर हम लोगों ने मिक्सचर का जो क्लासिफिकेशन किया, homogeneous and heterogeneous. A mixture is said to be homogeneous if the constituents are present uniformly and there is no clear boundary of separation between constituents.
no clear boundary of separation between the constituents of mixture. So what does it mean? No clear boundary of separation. It means that we cannot distinguish between the constituents of mixture, and we can't see the constituents by the naked eyes. That is, constituents are not visible. So there is no clear boundary of separation between constituents. इसका मतलब कि जो सब्सटेंस मिक्सअप हैं उनके बीच कोई डिमार्केशन लाइन हम नहीं खींच सकते, उनके बीच हम अंतर नहीं कर सकते, उनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते. This will be clear more by taking an example. Sugar, this is compound. Sugar is a compound, and sugar is soluble in water. So what do we get? We get sugar solution. आपने इसे देखा भी है, चखा भी है, घर पर बनाया भी है. जब चीनी को हम पानी में मिलाते हैं, स्टायर करते हैं, तो शरबत बन जाता है. डेट शरबत इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन. अभी शुगर कंपाउंड है C12 I22 O11. This is chemical formula of sugar. C12 I22 O11. This is sugar. और ये क्या होता है? वाटर H2. तो जब हम पानी में शुगर को डिजल्व करते हैं तो घुल जाता है और शुगर सॉल्यूशन बन जाता है. तो शुगर सॉल्यूशन में, दैट इज शरबत में, न में चीनी अलग दिखाई देती है और न पानी अलग दिखाई देता है. तो देयर इज नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स. कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ क्या हुआ? शुगर एंड वाटर आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन. तो शुगर में और पानी में हम अंतर नहीं कर सकते, एक डिमार्केशन लाइन हम नहीं खींच सकते, शुगर पार्टिकल्स को हम अलग से नहीं देख सकते नेकेड आइज के द्वारा. तो दिस मीन्स दैट देयर इज नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर इन केस ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. A mixture is said to be homogeneous if the constituents are present uniformly and there is no clear boundary of separation between constituents. It's clear that there is no demarcation line, demarcation point between sugar particles and water molecules. And we can't see sugar particles and water molecules separately. They mix together. Here uniformly, one word is uniformly, मतलब समान रूप से मिला होता है. जैसे अगर हम इस 20 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिजल्व करते हैं तो 100 मिलीलीटर शुगर सॉल्यूशन का निर्माण होता है. अभी इस 100 ml वॉल्यूम को हम लोग 4 भाग में बांट लें या 5 भाग में 20 ml, 20 ml और 20 ml और फिर 20 ml एंड 20 ml. तो 20 ml में 5 भाग कर लें, 1 2 3 4, ये 20 ml कर लें. तो कह रहा है कि प्रत्येक 20 ml में हाउ मच शुगर इज डिजल्व्ड? 4 ml. If you 4 gram, if you analyze the every part of sugar solution, we get to the same quantity of sugar. So this is uniformly means
throughout the mixture, that is throughout the sugar solution, the sugar is uniformly mixed. ऐसा नहीं है कि किसी 20 ml वॉल्यूम में 6 ग्राम शुगर मिल जाएगा और किसी 20 ml में कितना 3 ग्राम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक 20 ml में अगर हम एनालाइज करें गर्म करके तो वाटर इवेपोरेट होकर रेसिड्यू पार्ट जो शुगर मिलेगा वो हाउ मच मिलेगा, वह 4 ग्राम मिलेगा। दिस इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजेनस मिक्सचर में कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली मिले होते हैं और कंस्टिट्यूएंट्स के बीच क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कंस्टिट्यूएंट्स के बीच, और कंस्टिट्यूएंट्स को हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मोर एग्जांपल वी कैन सी, जैसे हम लोग अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हैं तो अल्कोहल गेट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। जैसे हम लोग अल्कोहल प्लस वाटर, अगर हम 40 ml अल्कोहल को 100 ml वाटर में मिक्स करें, अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, और ये क्या हो जाएगा H2O। तो इस अल्कोहल को जब हम वाटर में डिजल्व करें, यहाँ जो है सिम फेज मिक्सचर है, सिम फेज मतलब लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, और शुगर और वाटर वाला जो मिक्सचर हम लोग लिया वो क्या हुआ डिफरेंट फेज। तो दो फेज के आधार पर दो तरह के मिक्सचर को होते हैं, होमोफेज एंड हेट्रोफेज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोफेज मिक्सचर। दोनों लिक्विड स्टेट में ही है। जब सेम स्टेट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों रहे तो हम लोग क्या कहते हैं, होमोफेज कहते हैं, या जब सेम फेज में कंस्टिट्यूएंट्स रहे तो होमोफेज मिक्सचर कहते हैं। यह होमोफेज मिक्सचर है, लिक्विड लिक्विड। अल्कोहल पानी में डिजल्व हो जाता है। अभी अल्कोहल जब डिजल्व होता है पानी में, तो पानी और अल्कोहल के बीच जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब समान रूप से घुला होता है, और दोनों के बीच सरफेस ऑफ सेपरेशन नहीं होता। देयर इज नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स। तो हम लोग यहाँ पर नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब यह हुआ कि हम लोग अल्कोहल को और वाटर को अलग अलग नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते। राइट नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर के ठीक विपरीत जो है वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। असमांग मिश्रण इसका नाम देते हैं। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करते हैं, मिक्सचर ठीक के उल्टा, a mixture is said to be heterogeneous if the constituents are not present uniformly। इसमें यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होता है और इसमें यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है, समान रूप से वितरित नहीं होता है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं मिक्सचर में, and the constituents have a clear boundary of separation and they can be seen by naked eyes। constituents को हम खुली आंखों से, नग्न आंखों से देख सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो हम लोग इसका उदाहरण ले समझने के लिए कि हेट्रोजेनस मिक्सचर कैसे होता है। जब कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं तो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनता है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में क्या होता है, देयर इज अ क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब एक डिमार्केशन लाइन होती है दोनों के बीच में।
कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में, कंपोनेंट्स के बीच में। तो कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में जो बाउंड्री लाइन होती है वो सेपरेशन लाइन होती है, और उस सेपरेशन लाइन के द्वारा हम पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं। खुली आंखों से ये पार्टिकल्स जो है विजिबल होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर सैंड एंड साल्ट, सैंड और साल्ट का मिक्सचर ले, तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर ये कैसे एग्जाम्पल होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि सैंड और साल्ट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। कहीं सैंड ज़्यादा होता है, कहीं साल्ट पार्टिकल ज़्यादा होता है, कहीं पर साल्ट पार्टिकल ज़्यादा है, कहीं पर सैंड पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और इस तरह से क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। दूसरी चीज़, अगर एक कंटेनर में हम सैंड और साल्ट को मिक्स कर दें, स्टायरर के द्वारा स्टार कर दें, स्टायरर मतलब ऊपर नीचे कर दें, तो हमें सैंड और साल्ट के पार्टिकल्स जो है कलरली दिखाई देगा। साल्ट का वाइट